امریکہ اور برطانیہ نے تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے جس کے تحت دونوں ممالک تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، دونوں ممالک تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، معیشتوں میں 25 لاکھ سے زائد ملازمتوں کو مل کر سہارا دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ سے تجارتی ڈیل کامیاب رہی اور ٹیرف کم کیا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ اہم اتحادی ہیں، برطانیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی، دونوں ملک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری ہے۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے اور کسی ایک ملک پر بیرونی حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کے دفاع کے لیے موجود ہوگی۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ملکوں کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری ہے۔ معاہدے پر دستخط دونوں ممالک کے گہرے دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں۔ معاہدہ امن کے فروغ اور علاقائی اور عالمی سلامتی کو مستحکم کرنے کے مشترکہ مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری کے شعبوں میں انتہائی فائدہ مند تصور کیا جا رہا ہے۔ موجودہ اور متوقع خطرات اور چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب میں شاندار استقبال دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا دونوں ملک ہمیشہ ایک ہی صف میں رہے اور رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا مشترک دشمن کے مقابل ساری امت متحد ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کو مزید قریب لے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شاندار استقبال پر دل سے متاثر ہوں۔ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ تاریخی معاہدے کے بعد سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ ان کے اس پیغام کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف نے جواب دیا پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم موڑ، دو برادر ملک دشمن کے سامنے صف آرا اور شانہ بشانہ، مشترک دشمن کے مقابل ساری امت متحد ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، مسلم امہ پائندہ باد۔ سعودی عہدیدار نے ایک بیان میں کہا کہ دفاعی معاہدہ کسی مخصوص واقعے کا رد عمل نہیں، یہ دونوں ممالک کے درمیان طویل المدتی تعاون کا عکاس ہے۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ تمام فوجی وسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد ریاض اور اسلام آباد کی بلند و بالا عمارتیں سعودی اور پاکستانی پرچم کے رنگوں سے منور ہو گئی۔ ریاض کی کنگڈم ٹاور سمیت متعدد عمارتوں پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ روشن ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو سبز روشنیوں سے سجایا گیا۔ پاک سعودی ٹاور سمیت مختلف مقامات کو خوبصورت روشنیوں سے مزین کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے پرچموں کو 3D لائٹ سے سجایا گیا۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि वज़ीर-ए-आला हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। कैंसर के मुस्तहिक मरीजों का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। पंजाब में पहले जदीद कोआगुलेशन सेंटर ट्रीटमेंट का आगाज कर अमल में लाया गया है। कैंसर के मुख्तलिफ इकसाम के इलाज के लिए मजीद मशीनरी लेकर आ रहे हैं। इलाज की तरबियत के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स को चीन भिजवाया। जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ कराई गई। ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। मैं पाकिस्तान के अवाम से और ख़ुसूसन पंजाब के अवाम से बहुत खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया। और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हूँ। जो भी पेइंग पेशेंट्स नहीं हैं, जो 16 लाख या 17 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उनका पंजाब हुकूमत अल्लाह ताला के फजल करम से 100% उनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर किसी मेजर जो इन्वेसिव सर्जरी है उसके, बग़ैर कीमोथेरेपी के, बग़ैर रेडियोथेरेपी के कैंसर का इलाज हो रहा है। और विद इन 60 मिनट्स पेशेंट इज़ कैंसर फ्री। अलीपुर छठा कादराबाद बैराज के मुल्हिका डेरा भोगा में सैलाबी रेलों ने माजूर किसान के घर को शदीद नुकसान पहुंचाया। माजूर किसान की कई एकड़ पर खड़ी फसल भी तबाह हो गई। मजीद जानते हैं मुजम्मिल सलामुल्लाह बलोच से। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कादराबाद बैराज के मुल्हिका डेरा बोगा पर। यहाँ सैलाब की तबाहकारियों के साथ देखे जा सकते हैं। यहाँ एक माजूर किसान है जिनका जो मकान है वो भी सैलाबी रेलों की नज़र हो चुका है। अगर मेरा कैमरा मैन अख्तरलोन दिखा सके, ये इनका जो कमरा है बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इन सैलाबी लहरों की वजह से बिल्कुल टूट गया है। दूसरी जानब इस माजूर किसान ने यहाँ पर जो सब्जियाँ उगा रखी थी वो भी यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं लहरों की वजह से। हमारे साथ ये किसान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर जी सैलाब आज मकान गिर गया, सब्जियाँ रुड़ गई, इमदाद करनी चाहिए, बढ़िया इमदाद। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में दादरसी की जाए और उनकी मदद की जाए। जी दरिया सिंध में ओबाड़ों के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे के इलाकों में 2 से 3 फीट पानी मौजूद है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इकराम। हाँ जी, देखिए पंजाब में सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ अब सिंध में दाखिल होना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला घोटकी की तहसील उबाड़ो कच्चे के इलाके में। यहाँ पर भी 2 से 3 फुट का पानी सैलाबी पहुँच चुका है। इससे पहले उबाड़ो की UC बांध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद थी, अब वहाँ पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल मौजूद है। और उबाड़ो की जो कच्चे का इलाका है रौंती, अब वहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया कि जल्द से जल्द कच्चा खाली कराया जाए ताकि जो मज़ीद सैलाबी जो ख़तरात हैं उनसे ये लोग बच सकें। इसके साथ ज़िला इंतज़ामिया ने पक्के के मकाम पर रिलीफ कैंप भी कायम किए। लेकिन बताने की बात यह है कि अब तक कच्चे से जो लोग नकल मकानी करके पक्के की तरफ मुंतकिल हुए, अब तक वो रिलीफ कैंप तक नहीं पहुंच सके। जब इस हवाले से उबाड़ो इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुतासिरीन लोग कच्चे से पक्की की तरफ मुंतकिल हुए वो अपने रिश्तेदारों तक चले गए जो अब तक रिलीफ कैंप पर नहीं पहुंच सके। इसके साथ जिला इंतजामिया ने उबाड़ो के जो बचाव बंद है वहाँ पर मेडिकल कैंप भी कायम किए। यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर भी मौजूद है ताकि जो मुतासिरीन का माल मवेशी जानवर होगा उनको इंजेक्शन किया जाए ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। इसके साथ जिला इंतजामिया का कहना था कि मुमकिन तौर पर जो सैलाबी रेला उबाड़ो पहुंचेगा उससे निपटने के लिए तमाम तरह हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जी दरिया सिंध में सक्खर के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी है। इस बारे मजीद जानते हैं आकर रिजवी से। जी आकर। जी मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के किनारे बंदर रोड पर और यहाँ पे दरिया सिंध में आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की तो इसमें बहुत ही तेज़ी के साथ तब्दीली देखने को मिल रही है। जो गुज़िश्ता रोज़ 5,71,000 क्यूसेस के एक पीक लेवल पे रेला यहाँ से गुजर रहा था पानी का, और उस वक्त जो है उसमें तब्दीली आ चुकी है और उसमें पानी की कमी के बाद यानी 24,000 क्यूसेक्स यानी गुज़िश्ता रोज़ से पानी की कमी देखी जा रही है यहाँ पे। और जो पानी की आमद रिकॉर्ड हो रही है 5,40,000 क्यूसेक्स, जबकि अखराज जो है 4,95,000
50,000 क्यूसेक्स दरिया सिंध में जो आगे कोटरी की तरफ अखराज किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ जो है 51,000 क्यूसेक्स जो है दरिया सिंध में जो सक्का बराज से जो नहरें निकल रही है उनमें पानी छोड़ा जा रहा है। लिहाजा इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी वो वहाँ से नकल मकानी उन्होंने नहीं की। बंद के इलाके वाले जो है उन्होंने तो नकल मकानी कर ली थी, मगर ये कि उन्होंने की। अब मजबूरी तौर पर सूरत हाल इसी तरह से कि गुड्डू के बाद जो है सखर में भी इस वक्त दरमियान दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, और ये इसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से तेजी से ये पानी की कमी का सिलसिला जारी रहा तो 24 घंटे में और मजीद पानी की सतह में कमी देखने को मिलेगी। जी। सिंध अमन मार्च मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में अब्दुल्ला हारून रोड पर पहुंच चुका है। मार्च कुछ देर में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान दीन मोहम्मद वफाई रोड पर मुनक्किद जलसागाह पहुंचेगा। आपको हम खबर दे रहे हैं सिंध अमन मार्च के हवाले से, जो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अब्दुल्ला हारून रोड कराची पहुंच चुका है और मार्च कुछ देर में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान दीन मोहम्मद वफाई रोड पर मुनक्किद जलसागाह में पहुंचेगा। सिंध अमन मार्च से मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अब्दुल्ला हारून रोड कराची पहुंच चुका है। बताया ये जा रहा है कि ये मार्च कुछ देर में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पहुंचेगा, जहां पर जलसागाह में इसकी मंजिल है और वहां इसको पहुंचना है। बताया ये जा रहा है कि कुछ देर बाद ये जलसागाह पहुंच जाएगा और इस वक्त जो है अब्दुल्ला हारून रोड कराची पहुँच चुका है। ये सिंध अमन मार्च जो कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जारी है। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम मेडल जीतने में नाकाम। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम की पहली 4 थ्रोज में 2 थ्रोज ज़ाया हुई। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 82.75 मीटर की थ्रो की, दूसरी थ्रो ज़ाया हुई। अरशद नदीम ने तीसरी थ्रो 82.73 मीटर्स फेंकी, चौथी थ्रो भी ज़ाया हुई, जिसके बाद अरशद नदीम मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। अरशद नदीम फाइनल में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल न जीत सके और 8वीं पोजीशन हासिल की। ट्रिनिडाद टोबागो के केशवरोन वॉलकट ने मेडल हासिल किया।